solutions. Prior to joining S&P Dow Jones Indices in 2009, Koel gained wide experience in the asset management and financial industry. She has previously served at IL&FS Mutual Fund beginning in 2001 and then at UTI Asset Management, where she gained insights on asset management industry through her marketing and sales role. She has also played a very key role in building business and client relationship for Thomson Reuters in the challenging investment industry. She is a chartered accountant and a member of Chartered Accountants Institute of Chartered Accountants of India. With this introduction, I invite Koel to please give her presentation. Hi, good evening to all. Firstly, I would like to thank the BSE Broker Forum and ICICI Prudential to give us this opportunity to speak about one of the most widely and globally known index for Indian markets, that's the S&P Sensex. And we basically first want to start off with giving you a little perspective about the new name that you see on the slide, which is Asia Index Private Limited, and how the co-branding. You would be knowing the Sensex as just the BSE Sensex, and I just mentioned S&P BSE Sensex. So this co-branding is what I want to start off with, and basically who we are. Asia Index Private Limited is basically a 50-50 joint venture between S&P Dow Jones LLC, this is the world's largest provider of financial market indices, and BSE. I think BSE needs no introduction here. So basically, we want to share that today Asia Index Private Limited is basically the joint venture company that is today managing these indices and also going to be creating new co-branded indices for the Indian markets. So you will be seeing a lot more of us. But now going on to just, BSE does not need introduction for sure, but some facts about BSE that are now coming to light, and you would be probably well appreciate the facts as of what is there in the slide. BSE was founded in 1875, but as of today, some statistics that it's the largest number of listed companies in the world. So we have 5,433 as on 31st July. It's the 8th largest exchange globally in terms of market capitalization. It's the 3rd most liquid exchange for index options, 7th largest exchange in terms of equity shares, 2nd largest in the world in terms of currency options contracts traded, and 4th largest in the world in terms of number of currency futures contracts traded. Now, who says that BSE is being left behind? All these statistics are taken from WFE, so these are pretty credible credentials that we are seeing here. A little about who S&P Dow Jones Indices is for those who already would not know. We are one of the world's largest provider of market indices. Some of the ones which you would be well aware of are the S&P 500, the Dow Jones Industrial Average. Basically, while here in the slide we have, it states that it's USD 5.7 trillion of global assets here. But a recent study by ETF Trends has shown that the assets now linked to the ETFs on the S&P 500 are well over $7 trillion. So we have a lot of assets tracking our indices, and this is only the S&P 500. So we calculate over 1 million indices daily. We also do custom indices. And one of the things that a lot of people may not be aware, we do a lot of education and research. So basically we as an organization cater to over 1,000 clients. We have clients relationships over most of the asset management companies. And we have a lot of assets again linked to the S&P 500 and associated indices. A little bit about how we've evolved. Dow Jones dates back basically back up to 1896, and thereafter we had the S&P 500 that came in 1957,
Then we launched our first ETF on the S&P 500 in 1993. And the Case-Shiller home prices, which is very, very popular in the US and a real ballpark on home prices, was launched in 2006. S&P Dow Jones per se, we were S&P Indices before that, which was a McGraw-Hill company. And the Dow Jones Association started in 2012, while last year in April we announced our association with BSE, and that took us to a lot of associations that we have worldwide. So the next one is basically, we have a little bit about our reach in terms of we have clients over 65 countries and 17 offices worldwide, but we have pretty much reached across to any country and any continent in the world. A little bit about the AITF Board of Directors. Some faces may be familiar, some may not. Alka Banerjee, the first lady on top, maybe the handwriting is a little too small, but she's our CEO of EIPL. Bob Chakotko, he is based in New York, and Rodney below him is based in London, and they are our board of directors. You would be knowing Bala and Nehal, who are BSE members. So now just talking a bit about the S&P BSE indices, you already know the Sensex, and I'm sure you know most of the other indices that we have, but just to give you a sense of what our indices are, we basically categorize indices into broad, thematic. We have sustainability also as a theme. So, a lot of people are today talking about green themes. So we have a GreenX and a CarbonX as an index, which is basically into the sustainability theme. We have investment strategies, we have sectors, and we have volatility. Now, last year we introduced a few new indices, one of which was the 10-year sovereign bond. So we have forayed into fixed income, and of late, the latest one has been the infrastructure index in the equity space, because we got a lot of feedback saying that there is a lot of requirement for such a benchmark in the infrastructure space. And of course, with the new government and everything coming into place, infrastructure is into foray. So it would be good to have a benchmark to see where infrastructure is going today. Now to talk about Sensex. Now, do I really need to talk about the Sensex? But just some facts which probably more from and how we've created the index, which probably would give you an insight as to how the movements of the Sensex really today come around. So some basic facts to start with, launched in 1986. It's of course one of the oldest indices that we have, and it's deserved to be both a benchmark and an investable. The benchmark, by which I mean that if there are portfolio managers or asset management companies who have similarly diversified portfolios, they can use Sensex as a benchmark. So they can compare with the Sensex and see, okay, my portfolio is giving me 20%, Sensex is giving 25%. So maybe then he looks at how he needs to relook at his portfolio against a benchmark. And investable index, I mean that you can actually invest into it, create index funds and ETFs. So ETFs is something that Jatin later on is going to be talking about, so you'll get some more insight there. So it has, of course, the top 30 stocks, and it is widely reported both domestically and international markets. And I must say, international markets, still Sensex is the Indian market barometer. So anywhere you go across the world, you will find that people are talking about the Sensex. And Sensex tracks nearly 50% of Indians' equity market base. Now, we calculated both INR and USD version. For those who don't know, the USD version is called the S&P BSE DOLX. It's calculated in real time, so you actually can trade on it as well. Its index revenue, its review, its frequency is semi-annual. We have ETFs, index funds, and derivatives on the Sensex. So, as you're all aware, we have reached the 26,000 mark, and I think hopefully there will be better days to come. A little bit about the methodology so you understand the index as a product. So its universe is selected from the universe of the stocks in the BSE. You have to have a minimum 3 months listing period. The trading frequency, the stock should be traded on each trading day for at least 3 months. These are basically rules that we create in our index to make this more rules-based. So there is no subjectivity. There is no room for any kind of human thought or objectivity coming into it. So market cap, we use both the total and float adjustment market cap. A little bit of a complicated process, but we ensure that we are taking, first we screen it by both float and market, and then we take it and then we basically take it further down, drill it down and create some more screens, one of which is the liquidity screen. So you have to ensure that for an index to be tradable and to be investable, you have to ensure that it is liquid. So its stock should have enough liquidity.
And that is something which is very critical for an index. So that aspect we have covered through the 3-month average daily liquidity. And one of the things which is very important here again is industry and sector representation. For a benchmark to be truly representative of the market, it has to ensure that it has a fair representation of all sectors. And that's something that we have devised in our methodology so that that is taken care of. So that is another aspect of the methodology that makes Sensex pretty unique. Some trivia on the Sensex. So while it was launched in 1989, we have history dated back to 1979. And the total return version, which is including the dividends, was launched in 1996. The ICICI ETF on the Sensex, which is SPICE, was launched in 2003, and very coincidentally in September of the same year, we devised the float adjusted market cap. So we shifted from total market cap to float adjusted. And world over, there is more of float market cap weighted indices because they are a better representation of the market as well. And of course, last year, February 19, was a historic year for both S&P Dow Jones and BSE because we created the AIPL and the rebranding of the Sensex to the S&P BSE Sensex. Now this is a little bit of the index performance over the years, just taken from 2004 onwards, and how we have represented it. Now GICS weight is something that maybe BSE weight classification is different. GICS is what is universally and globally used by most of the asset managers and international players, and that's the kind of representation you have. You have a fair representation. If you see, there's consumer staples, information technology, industry, materials, utility, financial. So while it is financial heavy, it's not all over financials. It's consumer discretionary. So you have a fair representation across. The point that I was trying to make in terms of we try to cover most of the industries and sectors that we try to put in. And then, of course, a little bit about the index performance returns here. So basically what we are doing is we also check about the risk-adjusted return. So what is the kind of returns that you earn per unit of risk? So if you see a 1-year return is actually better than the S&P 500. So here again, we are using S&P 500 to benchmark against the Sensex, but if you see across here, you will see there is a 3-year return, there is a 5-year return and a 7-year return. So across the counter, we actually see that even the risk-adjusted returns given by Sensex has been pretty comparable. And this is a bit about the calendar performance throughout 2004. So we started off and we are pretty much, today we've not taken so far current returns, but it has been a good roller coaster ride. And that's about it for me. I'm happy to take on any questions if you have. Questions? Maybe later. Maybe Jatin can come over and take. Thank you so much. Thank you, Koel, for giving us this insightful presentation. Now I would request Mr. Jatin from ICICI Prudential to share his presentation. To come forward, so we can have a very interactive session, and this will give me a chance to talk to you personally about index, of course, and about ETFs. Please, sir. First of all, thank you, Koel, for sharing information about index. AICPL, the new collaboration between S&P and BSE. Hope we'll see many more indexes coming on which we can launch ETFs. Secondly, I would like to thank BSP and his team and BSE Brokers Forum for giving us time and this opportunity to discuss about ETF
why ETF are so popular about in developed market and how it is trending in India. जैसे कोयल ने हमें इंडेक्सेस के बारे में बताया, तो आज के प्रेजेंटेशन में अगले 30 मिनट 45 मिनट्स में हम ये जानेंगे कि ये इंडेक्सेस को इन्वेस्टेबल कैसे बनाया जाता है ETF के द्वारा, और पैसिव फिलोसॉफी या इंडेक्सिंग फिलोसॉफी क्या होती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम ETF के द्वारा उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप सभी ब्रोकर्स हो, ब्रोकर के मेंबर्स हो और ब्रोकर के स्टाफ हो, तो आप आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ETF कैसे यूज कर सकते हो। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड पैसिव फिलोसॉफी। वॉरेन बुफे सभी जानते हैं, ऐसा कोई है जो वॉरेन बुफे को नहीं जानता? राइट, कोई शायद ही कोई होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हो बट वॉरेन बुफे को ना जानता। वॉरेन बुफे के जो इन्वेस्टर्स है, जो इन्वेस्टर उनकी कंपनी बेर्कशायर हैथवे में इन्वेस्ट करते हैं, हर साल वॉरेन बुफे एक एनुअल रिपोर्ट में अपना लेटर देते हैं विच इज कॉल्ड एज अ लेटर टू इन्वेस्टर्स। वो कई सारे लेटर्स में उन्होंने रिपीटेडली कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को जो अपने यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पिछले 5 साल से जिनका कमी है, रिटेल इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो आइडियली इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उनका जो लास्ट 2013 का जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें उन्होंने कहा है कि उनकी डेथ के बाद उनका जो भी कॉर्पस उनकी वाइफ को जाएगा एज अ विल, उसमें से 90% शुड गो इनटू लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड्स। तो वर्ल्ड का इतना रिचेस्ट आदमी जो इतना वेल नोन है, वो भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए इंडेक्स फंड रेकमेंड करता है। तो हम आगे अभी ये डिस्कस करेंगे कि क्यों इतना वेल नोन आदमी जो दिन रात खुद कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है, बट बाकी जो इन्वेस्टर्स है, जो रिटेल पार्टिसिपेंट है, उनको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए वो सलाह दे रहे हैं। उसके पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इक्विटी के ब्रॉडली क्या रिस्क है? लोग अभी भी इक्विटी में आने के लिए क्यों डर रहे हैं? आप में से कोई बराबर है, कंपनी बंद हो जाएगा तो क्या करोगे? वॉलेटिलिटी और टाइमिंग और कैपिटल कम हो गया तो क्या करेंगे? हो सकता है, बराबर है। और कुछ मैनिपुलेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन तो सभी चीजों में होगा। सॉरी, फेयर वैल्यू है कि नहीं, बराबर। सॉरी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। और एनी लेडीज वुड लाइक टू आंसर? ठीक है, हमारे हिसाब से अगर इक्विटी में जैसे अगर मैं ये सभी चीजें समराइज करूं तो सबसे पहला रिस्क है प्रेडिक्शन रिस्क। कौन सी कंपनी चलने वाली है, कौन सी कंपनी नहीं चलने वाली है, राइट? सभी लोग ये इच्छते हैं कि मैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करूं उसका प्राइस रातों रात डबल हो जाए या रातों रात ट्रिपल हो जाए, बराबर। तो सबसे पहला रिस्क है प्रेडिक्शन रिस्क। ये प्रेडिक्ट करना कि कोई कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करेगी, राइट? एक सर ने कहा कि प्राइस उसका फेयर है कि नहीं। मेरे हिसाब से वो फेयर हो सकता है, किसी और के हिसाब से फेयर नहीं हो सकता है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी रिस्क। एक ही चीज का दो अलग अलग ओपिनियन होना, राइट? ये दोनों चीज कि किसी भी चीज का आप बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर सकते हो, और जो सब्जेक्टिविटी रिस्क है वो क्यों होता है, दैट इज मेनली बेसिक बिकॉज ऑफ फिजिकल साइंस वर्सेस सोशल साइंस। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर कंपनी का मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं है, बराबर, उसका आगे चल के ग्रोथ क्या होगा। तो जो मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस है वो कैसे डिसाइड होता है? अगर समझो फॉर एग्जांपल आज
रिलायंस का भाव फॉर एग्जांपल 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया किसने डिसाइड किया? सॉरी, ये सर बोल रहे हैं मर्चेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकर में बायर एंड सेलर, राइट। अगर कोई एक पर्टिकुलर सौदा जो है जब तक एक भाव पे अग्री नहीं होता है, राइट, तब तक उसका प्राइस डिसाइड नहीं होता है। जैसे आपने राइटली कहा कि डिमांड एंड सप्लाई और जो मार्केट पार्टिसिपेंट है, तो ये जो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है, जो भी वो मूवमेंट पे है, वो किस आधार में डिसाइड होता है? सबसे पहले मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अभी वो मार्केट एंड डिमांड जो सप्लाई जो है वो किस बेस पे डिसाइड होता है? मार्केट में अभी तक का फ्रेश न्यूज जो अवेलेबल है उसके बेस पे, राइट। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले किसी एक टेक्नोलॉजी स्टॉक में कुछ न्यूज आया, मैं नाम कोट नहीं कर सकता हूँ, बट समझो 10:30 बजे कुछ न्यूज आया, 10:29 तक वो किसी को नहीं पता था, 10:30 बजे न्यूज आया और उसका जो प्राइस है अपने आप एडजस्ट हो गया। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है वो प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाती है और उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। जो फ्यूचर न्यूज है, जो न्यूज आगे चल के आने वाली है, वो किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट को नहीं पता है, जिसके बेस पे हम वो न्यूज एक्सप्लोर करके उसका शेयर का प्राइस प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं, राइट। ये जो प्रेडिक्शन है वो इतना डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज देयर इज सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन। आज मुझे लगता है कि रिलायंस का भाव या इन्फोसिस का भाव 1000 रुपया होना चाहिए आइडियली, बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। उसका फंडामेंटल एनालिसिस है या टेक्निकल एनालिसिस है, या आजकल बहुत सारे जन एस्ट्रोनॉमी भी यूज करने लगे हैं। सितारे के जो मूवमेंट रहते हैं उसके हिसाब से भाव नक्की होता है कि नहीं? पेपर में आता है बहुत सारे टाइम कि ये योग दशा चल रही है तो बाजार का रुख ये लग रहा है, राइट। तो बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो कंसीडर करके मैं एक चीज का भाव नक्की करता हूँ, बट क्या ये जरूरी है कि मेरा सामने वाला भी वही भाव नक्की करे, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, उसमें सब्जेक्टिविटी रिस्क हो जाते हैं। आगे आने वाला समय सिर्फ मुझे बता सकता है कि मैंने जो प्राइस नक्की किया था वो सही था या गलत था, बराबर। फॉर एग्जांपल आज अगर रिलायंस का 1000 रुपीज हुआ, अगर मुझे इंडिविजुअली ऐसा लगता है कि उसका भाव आगे चल के 1500 होगा तो मैं बाय करूंगा, मगर उसके सामने एक सेलर रहेगा जिसको लगता होगा कि इसका भाव 500 होगा, उस वजह से वो 1000 रुपीज पे बेच रहा है, विच इज कॉल्ड एज सब्जेक्टिविटी रिस्क। ये मेनली जो प्रेडिक्शन रिस्क है और जो सब्जेक्टिविटी रिस्क है वो क्यों होता है? The reason behind is social science versus physical science. अगर हम फिजिकल साइंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये ऑडिटोरियम कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा के ये नक्की कर सकता हूँ कि इसमें मुझे कितना रेती डालना पड़ेगा, कितना पानी डालना पड़ेगा, कितना सीमेंट डालना पड़ेगा, कितना स्टील डालना पड़ेगा, और उस हिसाब से एक ये स्ट्रक्चर मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अभी फॉर एग्जांपल अपने प्राइम मिनिस्टर ने या अपने आरबीआई गवर्नर ने कुछ स्टेटमेंट दिया तो उससे इसमें जो स्टील लगा है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, वो तो सेम ही रहने वाला है, राइट। तो किसी भी फिजिकल साइंस में जिसका प्रॉपर्टीज किसी और चीज से मूव नहीं होता है, उसका आप एग्जैक्ट आउटकम अनुमान लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि ये हॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मुझे एग्जैक्टली पता है कि कितना उसमें मटेरियल रहेगा और उसका फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज नहीं होता है, उसकी वजह से मैं उसका आउटकम प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। बट वो जो लीवे है वो मुझे सोशल साइंस जो अपना स्टॉक मार्केट है या इकोनॉमी है वो इस पे निर्भर नहीं करता है। आज मैंने बहुत सारा रिसर्च करके एक कंपनी का वैल्यूएशन नक्की किया कि ये पर्टिकुलर कंपनी का वैल्यूएशन 100 रुपया होना चाहिए, बट जैसे ही मार्केट में नई कोई इंफॉर्मेशन आएगी या तो उनका कॉम्पिटिटर का कुछ न्यूज होगा, ओवरनाइट वो सब पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे।
ऐसा होता है जनरली, राइट? और कोई मुझे करेक्ट करना चाहेगा कि ऐसा नहीं होता है? होता है ना? आज मैंने फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस करके एक प्राइस नक्की किया कि ये सिक्योरिटी का प्राइस 1000 रुपया होना चाहिए, बट मार्केट बंद होने के बाद रात को कुछ ग्लोबल न्यूज़ आया, अमेरिका का कुछ न्यूज़ आया, उसकी वजह से कल वो प्राइस जो मैंने आज डिसाइड किया वो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो अगर उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे मैंने वो नक्की किया है वो अगर फ्रीक्वेंटली चेंज होते रह गए तो मैं किसी भी चीज़ का आउटकम कैसे प्रेडिक्ट करूंगा? ऐसा होता है। उसी वजह से स्टॉक का जो प्रेडिक्शन है वो प्रेडिक्शन रिस्क कैसे कम किया जाए, सब्जेक्टिविटी रिस्क कैसे कम किया जाए, उसके लिए हम इंडेक्स के तरह इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर सभी पार्टिसिपेंट का, मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट है उनका सभी का ओपिनियन एक प्राइस में नक्की होके वो इंडेक्स का वैल्यू कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल 2010, 11 और 12, यहाँ पर ये चार्ट में सेंसेक्स का जो कंपनीज था उसका एनालिसिस किया गया है। फॉर एग्जांपल 2010 में इंडसइंड बैंक वाज द टॉप परफॉर्मर, राइट? वैसे ही 2011 में TCS वाज द टॉप परफॉर्मर। अभी ये ग्राफ देख के आप ये बता सकते हो कि 2013-14 में इसमें से कौन सा स्टॉक ने परफॉर्म किया था? या तो इंडसइंड बैंक जो 2010 में 1 नंबर पे था वो अभी कौन से नंबर पे जाने वाला है? कोई बता सकता है? अगर पास्ट का डेटा भी जो हम लोग दिन रात मार्केट में रहते हैं, ये सेंसेक्स के बेसिकली स्टॉक है, उनका हम जो और ये भी 2010, 11, 12 का डेटा का बात कर रहे हैं। जो 13-14 में क्या हुआ वो अपने को जजमेंट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम जो 5000 स्क्रिप्ट NSE BSE पे लिस्टेड है उसमें से एक स्क्रिप्ट कैसे ढूंढ के निकालेंगे जो आगे चल के चलने वाली है। तो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रातों रात चेंज हो सकते हैं। उसकी वजह से अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँ, मार्केट में हाल फिलहाल BSE पे 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, राइट? और इतने सारे पार्टिसिपेंट है, कुछ 10,000 के करीब ब्रोकर है, कुछ 55,000 के करीब सब ब्रोकर है, ब्रोकर के 6,000 के करीब FIS के सब अकाउंट है। ये सभी दिन रात वही जो नेक्स्ट विनिंग स्टॉक है वो ढूंढने में लगे रहते हैं। तो आपको अगर मैं इसको अगर एनालॉजी के तौर में दूं तो ये बेसिकली एक बड़ा घास की गुंथी में से सुई गोदने जैसा है, बराबर? सर मैंने ये रिटर्न के हिसाब से किया था। अगर हाँ नहीं सर, मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ कि वो बेस्ट कंपनी है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर कि 2010 में इंडसइंड बैंक ने एक कुछ 413% रिटर्न दिया था, राइट? जनरली क्या एग्जैक्टली सर, मेरा भी वही पॉइंट है कि किसी भी स्क्रिप्ट का प्रेडिक्ट करना कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट मल्टीबैगर क्या है, वो जज करना बहुत ही मुश्किल है। नो हाँ, सर ने जैसे कहा कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता। अगर मुझे पता होता कि नेक्स्ट स्टॉक कौन सा चलने वाला है तो प्रोबेबली मैं यहाँ खड़ा रह के प्रेजेंटेशन नहीं देता होता, मैं पूरा मेरा पैसा वहाँ पर ही लगा देता। करेक्ट, बराबर ना सर? तो हम भी वही चीज़ कह रहे हैं कि इतनी सारी लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें से एक या दो या तीन नेक्स्ट मल्टीबैगर फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वो जो प्रेडिक्शन रिस्क है और जो सब्जेक्टिविटी रिस्क है वो आप कैसे कम कर सकते हो, राइट? उसके लिए अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, तो बेस्ट पॉसिबल मेथड है कि पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट करना।
50 स्टॉक का, तो आपको ये जज करने का जरूरत नहीं है कि कौन सा कंपनी चलेगा या कौन सा कंपनी नहीं चलेगा, बराबर। दूसरा, इंडेक्स इटरनल है, मार्केट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, राइट, बहुत सारी कंपनियां आई और गई, बहुत सारी कंपनियों के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ और वो कंपनियां डिलिस्ट हो गई, मगर आप जैसे गोयल ने कहा 150 साल से सिर्फ एक ही एंटिटी मार्केट में है, वो है सेंसेक्स, बराबर। तो उस पर एटलीस्ट आप फेथ करके इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो जैसे आपने कहा कि जो प्रेडिक्शन रिस्क है, सब्जेक्टिविटी रिस्क है, उसको कम करने के लिए जब भी आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्टॉक रिलेटेड जो भी अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको रिमूव कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किस वे से चलेगा या नहीं चलेगा, उसका जो प्रेडिक्शन करना है वो आपको करने का जरूरत नहीं है, राइट। जो ओवरऑल मार्केट वाइड रिस्क है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में कुछ चेंज हो गया जिसका असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा और इंडिविजुअल कंपनी पे भी पड़ेगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम अपने हाथ में जो है, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है उसको अवॉइड कर सकते हैं, बराबर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडेक्स इज कंपैरेटिवली एट लोअर कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जो ETFs होते हैं उनका कॉस्ट एनुअलाइज बेसिस पे सिर्फ 50 पैसा होता है, तो एज अ फंड हाउस हम नॉर्मली जो ओपन एंडेड स्कीम रहते हैं या बाकी के स्कीम रहते हैं जिसमें मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो इज क्लोज टू 1.5%, वेयरएज ETF में या इंडेक्स फंड में इट इज अराउंड 50 बेसिस, सिर्फ साल का 50 पैसा। आपको एक ही स्टॉक में ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंसेक्स ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक स्क्रिप्ट लेके, बराबर, आपका डाइवर्सिफिकेशन 30 स्टॉक में हो रहा है, बराबर। तो आपका जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है वो भी कम हो गया बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड है असेट एलोकेशन। किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए डेट, गोल्ड और इक्विटी, इसमें असेट एलोकेशन करना बहुत ही जरूरी है किसी भी पोर्टफोलियो में, राइट। ETF यूज करके, ETF गोल्ड पे भी अवेलेबल है, डेट में भी अवेलेबल है और इक्विटी में भी अवेलेबल है, तो इसका कॉम्बिनेशन करके आप आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हो डिफरेंट एसेट क्लास। लास्ट, बेनिफिट फ्रॉम एक्सपर्ट ओपिनियन। जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट है, जितने भी एक्सपर्ट्स है, उनका सबका ओपिनियन मार्केट में फ्लो होता है, उस हिसाब से इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का भाव नक्की होता है डिमांड एंड सप्लाई से, और वो जो सिक्योरिटी इंडेक्स में रहेगी उसके हिसाब से इंडेक्स का प्राइस नक्की होता है। तो ना ही आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत है, ना ही फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत है, ना ही कंपनी मीटिंग्स करने का जरूरत है, ना ही इनफैक्ट CNBC देखने का जरूरत है, राइट। वो जो काम है आपके लिए बहुत ही लो कॉस्ट में मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है वो ऑलरेडी कर रहे हैं और उसके वजह से आपके लिए भाव नक्की कर रहे हैं। तो ये इंडेक्सिंग और पैसिव इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स हैं। अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि एज अ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए इंडेक्सिंग और पैसिव इन्वेस्टमेंट क्यों कंसीडर करना चाहिए, अब हम देखेंगे कि वो कैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कम्स इनटू द पिक्चर। ETF के बारे में सुना, मोस्टली सभी ने सुना होगा, राइट। ETF कुछ नहीं, एक नॉर्मल ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक के फॉर्म में स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है। जैसे आप रिलायंस, इन्फोसिस या SBI का स्टॉक में ट्रेड करते हो, सेम तरीके से आप म्यूचुअल फंड में जो ETF के फॉर्म में है उसको एक्सचेंज पे सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स इज नथिंग बट अ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम व्हिच एक्ट्स लाइक अ स्टॉक। सो इफ आई गो टू नेक्स्ट स्लाइड, ग्लोबली अगर आप देखोगे तो जो पैसिव ETFs है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो जुलाई 2014 में तकरीबन 4000 ETF वर्ल्ड के पूरी दुनिया में एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है और तकरीबन $2.4 ट्रिलियन उनका असेट्स है सभी मिला के। तो वर्ल्ड ओवर ETFs बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट है,
बहुत सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में अगर इंडियन सिनेरियो देखें तो हाल फिलहाल इंडियन मार्केट में अराउंड 40 के करीब ETF अवेलेबल है, विच इंक्लूड्स गोल्ड, इक्विटी और डेट, और क्लोज टू 12,000 करोड़ का उनका कलेक्टिव AUM है। तो धीरे धीरे इंडिया में भी जो ग्लोबली हो रहा है, जिसकी वजह से लोग इंडेक्स में या ETF में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ट्रेंड धीरे धीरे हमें इंडिया में भी देखने को मिला है। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाए तो हम सर इसका जो भी रिटर्न होता है वो इंडेक्स के बराबर का रिटर्न होता है, डिपेंड करता है सर कौन सा इंडेक्स है उसके हिसाब से। तो जो हाँ सर मैं वही बोल रहा हूँ, वो आगे का स्लाइड में है। ETF के एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ETF और कुछ नहीं, ओपन एंडेड नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम है जो BSE पे या बाकी के एक्सचेंज पे जिसका ट्रेडिंग होता है। इसका जो लिस्टिंग है और जो ट्रेडिंग है वो कैश मार्केट सेगमेंट में होता है, ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आपके बुकिंग में ऐसे क्लाइंट होंगे जिनको FNO में एक्सपोजर नहीं लेना होता है, बट फिर भी उनको इंडेक्स में एक्सपोजर चाहिए, तो वो ETF के रूप के द्वारा कर सकते हैं। ये कैश सेगमेंट का प्रोडक्ट है, उसकी वजह से इसमें FNO जैसा कोई भी M2M वगैरह नहीं होता है। आप इसमें लिमिट ऑर्डर भी डाल सकते हो, जैसे जो फैसिलिटी नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं होती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज जस्ट 1 यूनिट। उसका प्राइसिंग कैसा होता है वो अपन आगे देखेंगे। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। जनरली मार्केट में लिक्विडिटी कैसे मेंटेन होता है? अगर एक समझो बायर है और एक सेलर है, एक पर्टिकुलर स्टॉक है, उसमें एक साइड बायर्स खड़े रहते हैं, एक साइड सेलर्स खड़े रहते हैं, बराबर। अभी समझो अचानक एक तरफ से बड़ा ऑर्डर आ गया, फॉर एग्जांपल बाइंग साइड से या सेलिंग साइड से, तो क्या होगा? प्राइस में इंपैक्ट होगा, हो सकता है उसमें सर्किट लगे, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा स्क्रिप्ट है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं है, बट एक ही तरफ से उसका बाइंग का बड़ा ऑर्डर आ गया या सेलिंग का बड़ा ऑर्डर आ गया, तो हो सकता है उसमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग सकता है, या तो फिर भाव एक तरफ या ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। बट वो कंपनी के जो प्रमोटर है वो आके रातों रात लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते वो मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल समझो रिलायंस, नो डाउट रिलायंस बहुत ही हाईली लिक्विड स्टॉक है, बट समझो मान लो कि रिलायंस में लिक्विडिटी नहीं है और एक साथ बड़ा ऑर्डर आ गया, तो मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी रातों रात आके रिलायंस का नया शेयर्स मार्केट में नहीं दे सकते, राइट। बट ETF में एक एडिशनल लेयर ऑफ लिक्विडिटी का प्रोविजन होता है जिसको ऑथोराइज पार्टिसिपेंट कहा जाता है। तो जैसे ही किसी भी ETF का जो प्राइस है वो एक अमुक बैंड के बाहर जाने लगा, तो ऑथोराइज पार्टिसिपेंट रियल टाइम पे ETF का यूनिट्स क्रिएट करके या रिडीम करके मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, उनका ये कंसर्न रहता है कि अगर मैंने मेरे क्लाइंट को ETF दिला दिया और आपका ETF इतना लिक्विड नहीं है, तो क्लाइंट को जब भी छूटना होगा तभी छूटने का मौका कैसे मिलेगा। तो उसके लिए ये आंसर है कि ऑथोराइज पार्टिसिपेंट रियल टाइम पे ETF का यूनिट क्रिएट भी कर सकते हैं और रिडीम भी कर सकते हैं। तो उस वजह से एज अ क्लाइंट और एज अ ब्रोकर आपको लिक्विडिटी का अश्योरेंस रहता है और प्राइस मैनिपुलेशन का उसमें चांस नहीं होता है। इसीलिए इसको कुछ क्वेश्चन है तो गो टू नेक्स्ट स्लाइड। I'll explain by giving example. फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ETF का प्राइस 100 रुपये है, राइट। तो आइडियली उसका जो ट्रेडिंग है वो 99 रुपीज से 101 रुपये के बीच में होगा अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। समझो हाल फिलहाल वो मार्केट मैकेनिज्म जो है वो प्लेस पे नहीं है, राइट, कोई ऑथोराइज पार्टिसिपेंट नहीं है, और एक साथ किसी ने 50 करोड़ का बाय का ऑर्डर या सेल का ऑर्डर हिट कर दिया, तो क्या होगा? अगर बाय का ऑर्डर है तो उसका भाव 125 रुपया हो जाएगा फॉर एग्जांपल, और अगर सेल का ऑर्डर है तो मे बी 75 रुपीज हो जाएगा, राइट। बट ये केस में
ऑथोराइज पार्टिसिपेंट कंटिन्यूसली वो प्राइस मूवमेंट मॉनिटर करते रहते हैं, राइट। तो जैसे ही उसका प्राइस 99 से 101 रुपये के बाहर जाने लगा तो वो नया यूनिट क्रिएट करके, अंडरलाइन बास्केट खरीद के नया यूनिट क्रिएट करके मार्केट में वो सप्लाई कर देते हैं, ताकि जो इन्वेस्टर है उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ना हो। करेक्ट? नहीं, रूल कुछ नहीं। It's basically from AMC side that we tend to keep it as narrow as possible from the NME. Sorry? Yes, yes. Yes, sir. That's what we are saying. कि जैसे मैंने कहा कि अगर आपको या आपके किसी क्लाइंट को बड़ा यूनिट्स अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। अगर वो क्रिएशन साइज का लॉट में है तो डायरेक्टली एएमसी के पास आ सकता है। अगर मान लो क्रिएशन साइज का लॉट में नहीं है बट फिर भी अगर बड़ा यूनिट है तो हमें फोन करके ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स के द्वारा वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाँ जी 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 सी डिपेंड्स कि अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेंसेक्स ETF है तो उसका क्रिएशन साइज 10,000 यूनिट है, विच इज क्लोज टू अभी का भाव के हिसाब से क्लोज टू 25 lakhs। तो अगर किसी इन्वेस्टर को वो लॉट साइज या उसके मल्टीपल में इन्वेस्ट करना है तो फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 यूनिट में तो डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हैं। बट मान लो कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिनको सिर्फ 1000 यूनिट चाहिए तो दे कैन कम ऑन द एक्सचेंज एंड वी कैन प्रोवाइड द लिक्विडिटी। सो वी मेक श्योर कि इन्वेस्टर को बाय साइड पे और सेल साइड पे एक पर्टिकुलर बैंड के ऊपर उनको इम्पैक्ट कॉस्ट ना पड़े। और जब भी हम ब्रोकर्स को या क्लाइंट्स से कम्युनिकेट करते तो उनको ये कहते हैं कि जनरली हो सके तब तक यूनिट ऑर्डर डालें। सो व्हेनेवर you put a limit order with that particular size, market maker on the other front will come to know कि इसका कितना यूनिट्स का है तो you start providing the limit. It is instant. Yes, sir. I'll share my contact. That's what, sir. You can call me. Yes, yes. जैसे कोई शेयर्स आते creating more shares or creating more units for See, basically किसी भी ETF का जो liquidity होता है that is the liquidity of underlying index. For example, अगर हमारा जो SPICE ETF है that is based on Sensex. सेंसेक्स के जो 30 स्ट्रिप का जो लिक्विडिटी है आइडियली दैट इज द लिक्विडिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ETF, क्योंकि मैं रियल टाइम बेसिस पे वो बास्केट बाय करके या सेल करके उसका ETF का यूनिट जो है वो क्रिएट या रिडीम कर सकता हूँ, राइट। तो अनलाइक नॉर्मल इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में नया स्टॉक रातों रात नहीं आ सकता है, राइट। बट नया ETF यूनिट्स जो है वो रातों रात आ सकते हैं, इनफैक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आ सकते हैं, right? Any other question related to liquidity? हाँ, वो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ आगे के स्लाइड में। आप नया क्रिएट करेंगे तो उसमें जो आप मार्केट में तो उतना यूनिट ले लेंगे, शेयर्स ले लेंगे बास्केट, तो उसमें डिफरेंस रहेगा ना। सॉरी, आपने ये प्रोवाइड किया एक पर्टिकुलर प्राइस, लेकिन उसके सामने नया क्रिएट कर सर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। फॉर एग्जांपल समझो आपको 10,000 यूनिट लेने हैं, 2-3% हो जाए, कितना परसेंट? सॉरी इसमें परसेंटेज 0.5% कितना है, बट वो 0.5% जो है दैट इंक्लूड्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑल्सो, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है। So as of now from ICICI Prudential AMC, ICICI Prudential AMC on equity side we offer 3 ETFs.
One is of course on Sensex, which is the first ETF launched on the BSE Sensex. It was launched in 2003 and that was the second ETF launched in India. After that, in last 1.5 years, we launched ETFs on Nifty and CNX 100 also. And on commodity side, जैसे बाकी के गोल्ड ETF है, वैसे हमारा भी गोल्ड ETF है. तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊँ, हमारे जितने भी ETF है, उसके एक्सचेंजेस का जो सिंबल होता है, that is always I, उसके बाद जो भी इंडेक्स है. तो फॉर एग्जांपल अगर सेंसेक्स से रिलेटेड ETF है, तो इट इज I सेंसेक्स. अगर गोल्ड है तो इट इज I गोल्ड. निफ्टी है तो I निफ्टी और CNX 100 है तो I CNX 100. तो ये पहले भी रखने के लिए डीलर और आरएम जो है और कस्टमर्स जो है उनको इजीली याद में रहे. तो ये सीक्रेट है कि I निफ्टी जो भी इंडेक्स है और उसके आगे सिर्फ I लगाना है. अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे, जनरली जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड स्कीम रहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, एक्सपेंस रेशियो तकरीबन 1.5% से लेकर 2% तक होता है. Whereas अगर आप ETF में देखोगे तो सेंसेक्स में वी चार्ज ओनली 40 बेसिस पॉइंट, साल का 40 पैसा, राइट. निफ्टी में और CNX 100 में वी चार्ज ओनली 49 बेसिस पॉइंट, यानी साल का 50 पैसा. अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, दोनों सभी प्रोडक्ट सभी जगह पे. अच्छा, ओके. BSE कोड स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है क्योंकि हमारा जो ये स्पाइस ETF है, I सेंसेस, उसका कोड बहुत ही यूनिक है, 5555. तो यस इट इज अवेलेबल ऑन NSE BSE. Exactly. We store it with the custodian, not someone. So, in case of gold ETF, Bank of Nova Scotia is the custodian, who is the world most popular gold custodian. US में या इंटरनेशनल जो भी गोल्ड ETF है, उनका भी कस्टोडियन उनके पास होता है. हमारा भी कस्टोडियन वही है. प्लस दिस इज सेमी रेगुलेटेड एंटिटी, राइट. तो उसमें जो काफ़ी सारा फिजिकल गोल्ड में जो प्रॉब्लम्स हुआ था स्पॉट वगैरह में, वो होने का यहाँ पर चांसेस नहीं के बराबर, बिकॉज दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी, राइट. अभी जैसे हमने प्राइसिंग का बात करते हैं, तो जो गोल्ड ETF है उसमें सामने उतना गोल्ड होएगा ही. यस सर. बट हु अश्योर्स दैट? सर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो प्रॉपर्ली उसका ऑडिट होता है, उसका ऑडिट का रिपोर्ट सेबी को जाता है और ऑडिटर्स को जाता है. तो सेबी का भी मॉनिटरिंग होता है, कस्टोडियन का भी मॉनिटरिंग होता है, प्लस जो बाकी के रेगुलेटर्स है उनका भी मॉनिटरिंग होता है. और उसमें आप प्राइस रिलीज कैसे करते हैं? सॉरी सर. उसमें नया इमीडिएटली आप सप्लाई करते हैं? हाँ सर. जैसे इक्विटी ETF के ऑथोराइज पार्टिसिपेंट होते हैं, वैसे जो बुलियन डीलर्स है, रिद्धि सिद्धि है, पुष्कर है, वो गोल्ड के ऑथोराइज पार्टिसिपेंट होते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं वो वही चीज़ की तरफ आ रहा था कि अगर प्राइसिंग का बात करें तो हम गोल्ड से शुरुआत करते हैं. अप्रोक्सीमेटली गोल्ड ETF का प्राइस 1 ग्राम के हिसाब से होता है. फॉर एग्जांपल अगर तोले का भाव फिजिकल मार्केट में तोले का भाव अगर 26,000 रुपया है, तो आइडियली गोल्ड ETF का प्राइस 2600 रुपया होगा 1 ग्राम का, राइट. तो अगर समझो किसी ने 1 ग्राम बाय किया तो सामने ऑथोराइज पार्टिसिपेंट फिजिकल गोल्ड 1 ग्राम के बराबर का उसमें इन्वेस्ट करता है, राइट. और ये 995 का प्योरिटी होता है. एक्चुअल गोल्ड और उसकी प्राइस सेम नहीं रहता है मार्केट में. हाँ, वो भी मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि क्यों नहीं होता, राइट. तो सबसे पहली बात ये कि गोल्ड का जो प्राइसिंग होता है वो 1 ग्राम के हिसाब से होता है. अभी जैसे इन्होंने बहुत ही करेक्ट क्वेश्चन किया कि फिजिकल जो गोल्ड है वो और ETF का जो प्राइस है वो जनरली सेम नहीं होता है. वो आपने भी नोटिस किया होगा. उसके अलावा ये भी नोटिस किया होगा कि जितने भी ETF है सभी का प्राइस अलग अलग होता है, राइट. वो क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने आज एक पर्टिकुलर गोल्ड का यूनिट क्रिएट किया, राइट. फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये पे.
मान लो कि आगे एक साल में गोल्ड में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है प्राइस में, राइट, बट उसमें मैं मेरा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता हूँ विच इज अराउंड 1%, वो मुझे डिडक्ट करना है। तो भले गोल्ड का प्राइस 1000 का 1000 रहा है, बट कोई भी गोल्ड ETF रहेगा उसका प्राइस 1% से कम हो जाएगा। 1%? That's because of expense ratio. Yes, yes. That also I address why it will not happen like that. Right? अभी मान लो कि 4 ETF अवेलेबल है, राइट? एक का प्राइस 2500 चल रहा है, एक का 2600 चल रहा है और एक का 2400 चल रहा है, राइट? तो क्या इसका मतलब ये है कि 2400 वाला सस्ता है या 2500 वाला या 2600 वाला महंगा है? नहीं। बेसिकली जो ETF मार्केट में सबसे पहले आया है और जिसका ट्रैकिंग एरर थोड़ा सा ज़्यादा है, वो ETF का प्राइस कम होगा, क्योंकि उसमें फॉर एग्जांपल एक ETF 7 साल पहले आया था, एक ETF अभी 1 साल पहले लॉन्च हुआ, तो ऑब्वियसली वो जो पुराना ETF है उसमें 7% का एक्सपेंस रेशियो रहेगा, वेरेस अभी वाला जो ETF है उसमें सिर्फ 1% का एक्सपेंस रेशियो रहेगा, बराबर। उसकी वजह से हो सकता है कि कोई ETF 2500 का हो मगर कोई ETF 2600 का हो। बट जब भी आप कोई भी गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हो तो आपका आगे का जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ है वो दोनों में सेम ही होगा, प्रोवाइडेड दोनों का एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर सेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी 2600 वाला ETF ले रहे हो या 2500 वाला ETF ले रहे हो और अगर गोल्ड का मूवमेंट 10% हुआ है और अगर 1% एक्सपेंस रेशियो है तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको परसेंटेज वाइज 9% दोनों में रिटर्न मिलेगा, राइट? अगर उसी जगह मैंने फिजिकल गोल्ड होल्ड किया हुआ है एक साल के लिए, अगर मैंने फिजिकल गोल्ड होल्ड किया हुआ है 1 साल के लिए और फिर ETF भी होल्ड किया हुआ है 1 साल के लिए और मूवमेंट इतना कुछ हुआ नहीं, एक्सपेंस रेशियो लग गया मेरा, बट मेरे को फायदा तो फिजिकल गोल्ड में होगा ना। वेरी वेरी वैलिड पॉइंट। बट सर उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब भी आप फिजिकल गोल्ड लेने जाओगे तभी जनरली ज्वेलर्स है या बैंक है वो आपको 10 से 15% का प्रीमियम चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो मुझे 1 ग्राम का कॉइन लेना है, राइट, अगर फिजिकल एक्चुअल स्पॉट का भाव अगर 25,000 है और अगर आप सोनार के पास से 1 ग्राम का गोल्ड का कॉइन लेने जाओगे तो आपको कम से कम 3,000 में मिलेगा, या बैंक के पास में भी जाओगे तो तकरीबन 3,000 से 3,100 रुपया उसका प्राइस रहता है। तो वहाँ पर तो आप अपफ्रंट 10 से 15% दे रहे हो, वेरेस यहाँ पर अगर गोल्ड का मूवमेंट नहीं भी हुआ तो आपको सिर्फ 1% का एक्सपेंस रेशियो है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप वो सेम गोल्ड का कॉइन बेचने जाओगे तो वापस वही ज्वेलर या दूसरा ज्वेलर है वो आपको वापस 5 से 10% डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, राइट? जनरली ऐसा किसी ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है ये? सर कमोडिटी मार्केट 11:30 बजे तक चलता है। सर एक मिनट मैं पहले इस चीज़ का आंसर दूँ, राइट? तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंटेड प्रीमियम जो है वो गोल्ड ETF में नहीं एप्लीकेबल होता है। उसकी वजह से अगर आप ओवरऑल रिटर्न कंपेयर करोगे फिजिकल गोल्ड का और गोल्ड ETF का तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट मैकेनिज्म अगर वो पॉइंट आप कंसिडर करो तो आपको गोल्ड ETF में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, करेक्ट? सेकेंड पॉइंट, अगर आप दो बाजू बाजू के सोनार के पास भी जाओगे तो आपको अलग अलग भाव मिलेगा। एक ही सेम 1 ग्राम का कॉइन जो है वो आपको एक सोनार में भी 3,000 में देगा, उसके बाजू वाला 3,050 में देगा, उसके आगे वाला में भी 2950 में देगा, जो जनरली होता है। वेरेज ETF का प्राइस कश्मीर से कन्याकुमारी में एक ही रहता है क्योंकि वो एक्सचेंज पे ट्रांसपेरेंट वे में ट्रेडिंग होता है, करेक्ट? तो वो बेनिफिट को भी ETF में मिलता है। या यू आर आस्किंग? सर कमोडिटी मार्केट 11:30 बजे तक चलता है, तो अगर प्राइस मूवमेंट हो गया उसमें गोल्ड में प्राइस मूवमेंट हो गया तो मार्केट आवर्स तो 9 to 3:30। सर मुझे कमोडिटी मार्केट से कुछ लेना देना ही नहीं है क्योंकि मैं फिजिकल गोल्ड खरीद रहा हूँ। कमोडिटी मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का होता है। पर वो सर अगर प्राइस मूवमेंट होगा तो मेरे को 3:30 बजे के बाद बेचना है, तो फिजिकल गोल्ड रहेगा मेरे पास तो मैं इसको 9:30 बजे के बाद भी बेच सकता हूँ, अगर चाहूँ या खरीद सकता हूँ। और यहाँ पर 3:30 बजे के बाद मैं कैसे आपका मेरा नहीं 3:30 रिस्क रहेगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ 3:30 इसका जो ट्रेडिंग होगा गोल्ड ETF का वो मॉर्निंग जो मार्केट नॉर्मल टाइमिंग्स है उसके हिसाब से होगा। अभी आप बोल रहे हो कि जो कमोडिटी मार्केट का टाइम है
बराबर। जो टाइम आपने क्या बताया, 11:30 बजे तक रात में रहते हैं। 11:30 बजे रहता है, बराबर। अभी मान लो मुझे पैसे का जरूरत पड़ा रात को 12 बजे, तो जरूरत नहीं, अगर प्राइस मूवमेंट हो गया, हाँ समझ रहे That's what I mean. अगर क्या है अंडरलाइन सेम रहेगा, कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा तो प्राइस स्टोरी कैसे होगी? सर सेम रिस्क तो आपको इक्विटी में भी है प्राइसिंग का। फॉर एग्जांपल अगर आपने आज फ्यूचर में सेंसेक्स का लॉट लिया हुआ है, राइट, और प्राइस मूवमेंट हो गया कल मॉर्निंग में कुछ भी न्यूज़ की वजह से, तो वो रिस्क तो आपको, जैसी मार्केट अगर बंद होगा, राइट, तो आप वहाँ पर भी कमोडिटी मार्केट में भी कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर एक्चुअल डिलीवरी ले सकते हैं क्या किसकी? गोल्ड की डिलीवरी? एज अ एएमसी वी कैन डू दैट, बट दैट हैज टू बी इन 1000 का मल्टीपल में, बट उसका प्रोसेस बहुत ही कम्बरसम है। आपको वैट का नंबर देना होता है, सर्विस टैक्स का नंबर देना होता है, प्लस इंश्योरेंस वगैरह लगता है। मैं तो आपको एक 1000 यूनिट के सामने 1 किलो का बार दूंगा, आप घर पे कैसे लेके जाओगे? बीच में ही गायब हो जाएगा। जो 1000 का खरीदेगा तो लेके जा सकते हैं। So because of that, what we tell them कि instead of doing that, you sell the unit on the exchange, जो आपके पास कैश अवेलेबल हुआ है उससे आपको जो भी ज्वेलरी वगैरह बनवाना है वो बनवा दो। सर इक्विटी में क्या है, इक्विटी में आपका मूवमेंट आफ्टर 9 o'clock, आफ्टर 3:30 मूवमेंट कुछ नहीं रहता है। इक्विटी बंद हो गया, उसका कोई बाय सेल नहीं होता। बराबर। गोल्ड ETF का क्या है कि 3:30 बजे के बाद फिर मेरे को प्रॉब्लम आएगा मूवमेंट गोल्ड। सर मैं वही बोल रहा हूँ, किसी भी मार्केट गोल्ड में एक ऐसा एक कमोडिटी जो कि आपका सर ये पॉइंट अपन अलग से डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आगे का प्रेजेंटेशन। सॉरी कम है, बट रात का कुछ बहुत डिस्काउंट होते हैं, मॉर्निंग व्हेन इट कम्स सेम मोमेंट इज नॉट हैपनिंग टुमारो मॉर्निंग। सर माय पॉइंट इज दैट ओनली कि वंस दी एनी पर्टिकुलर मार्केट इज क्लोज, उसके बाद जो भी न्यूज़ आया है उसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ ना ही इन्वेस्टर कुछ कर सकता है। लेकिन सर वो तो ETF इज व्हाट इंडेक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। इंडेक्स तो गोल्ड ही है, उसका जो वहाँ पे कमोडिटी मार्केट में चल रहा है और थ्रू आउट द मार्केट 9 से 11 इंटरनेशनल प्रोडक्ट। हाँ बराबर, मे भी आपका इधर बंद हो गया, हाँ बट वो रिस्क है सर, वो रिस्क है। सॉरी इन गोल्ड और सी जनरली कैसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि आज मैंने 1 किलो सोना लिया 30 लाख, उसका कोई भी प्राइस मूवमेंट नहीं है। 1% के हिसाब से उसका जितना भी वैल्यूएशन होता है उतना जो फिजिकल गोल्ड है वो मुझे बेचना पड़ता, उसकी वजह से जो NAV है वो कम हो जाए। अदरवाइज हाउ कैन आई रिकवर माय एक्सपेंस कॉस्ट? एनी अदर क्वेश्चन? बेचने के बारे में बोल रहा था, ये इसका कोई डिसिप्लिन है, आप किसको बेचेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में कर सकते हैं ऑथराइज्ड पार्टी जो गोल्ड बुलियन ट्रेडर्स होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ETF में एक NAV प्राइस होगा और एक मार्केट प्राइस होगा, ये दोनों का डिफरेंस कैसा है? एग्जैक्टली सर, जैसे मैंने कहा जो मार्केट मैकेनिज्म होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेंसेक्स ETF की बात करें तो जो सेंसेक्स है जो जितना पॉइंट पे ट्रेड हो रहा है उसका जो मेरा ETF है उसका प्राइसिंग 100 होगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल सेंसेक्स अभी मान लो कि 1000 पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो मेरा जो ETF है उसका प्राइस 100 के हिसाब से 10 रुपीज़ है, राइट। समझो सेंसेक्स 1000 से 2000 मूव करता है, तो मेरा जो ETF का प्राइस है वो 10 रुपये से 20 रुपया मूव करेगा, राइट, विच इज एप्लीकेबल टू ऑल दी इंडेक्स ETF। जो पर्टिकुलर इंडेक्स में मूवमेंट होता है उसका 100 या 1/10 जो प्राइस है उस हिसाब से वो पर्टिकुलर ETF का भी प्राइस मूव करेगा। तो इसमें जो प्राइसिंग का कॉलम है, प्राइसिंग जो है फॉर एग्जांपल जो सेंसेक्स है जैसे मैंने कहा इट इज 100th ऑफ द इंडेक्स, वैसे बाकी के जो ETF है दैट इज आल्सो 100th ऑफ द इंडेक्स, राइट। वो तो यूनिट प्राइस हो गई, ये सर मैं वही आपका क्वेश्चन ही आंसर कर रहा हूँ। अभी मान लो कि आइडियली जो NAV है वो 100 के हिसाब से 100 रुपया होना चाहिए था, बराबर, बट मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वो 99 रुपीज़ या 101 रुपीज़ पे ट्रेड करेगा। ये दो प्राइस के बाहर जैसे ही प्राइस जाने लगा
ऑथोराइज पार्टिसिपेंट आएगा और मार्केट में लिक्विडिटी देगा या मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगा। यानी उसको आर्बिट्रेज का अपॉर्चुनिटी है। जी जी राइट। एक मिनट और एक चीज, अगर आप बहुत ही क्लोजली अगर ETF ट्रैक करोगे तो ये जो ETF है वो एग्जैक्टली 100 या 1 ट्रेंड नहीं होती। उसका रीजन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर सेंसेक्स 26,000 पॉइंट है तो आइडियली ETF का भाव 260 रुपया होना चाहिए, बट वो 260 नहीं होकर 262 या 263 के करीब रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी में इंडेक्स की कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है उसका डिविडेंड मिलता है जो स्कीम में वापस री इन्वेस्ट होता है, उसकी वजह से उसका जो NAV है वो उतने पॉइंट से बढ़ जाता है। राइट। तो बहुत सारे जन को ये कंफ्यूजन होता है कि इंडेक्स तो 26,000 रुपये मगर आपका ETF का प्राइस 265 क्यों है? तो वो जो 265 है वो जो एडिशनल 5 रुपया है वो डिविडेंड है जो हम फ्रीक्वेंटली इशू करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट महीने में सेंसेक्स का जो हमारा ETF है उसमें वी हैव इशूड पर यूनिट 27 रुपये का डिविडेंड दिया था। गोल्ड में सर, गोल्ड मेरे को कोई डिविडेंड नहीं देता है ना, तो मैं कैसे डिविडेंड? वो इक्विटी के लिए इक्विटी तो इंडेक्स जो आपका है तो एग्जैक्टली उसके प्रपोर्शन में ही आप कितना शेयर्स ले लेते हैं और यू बाय FNO में इंडेक्स? नहीं, FNO बिल्कुल भी नहीं होता है सर। इसमें अगर समझो सेंसेक्स ETF है तो सेंसेक्स का जो भी 30 स्टॉक्स है जो भी प्रपोर्शन में है जो भी वेटेज है वो सेम में मिमिक करता है, तो ही मैं इंडेक्स का रिटर्न दे पाऊंगा ना सर। करेक्ट। तो सेंसेक्स ETF और सेंसेक्स लिंक म्यूचुअल फंड में फर्क क्या हुआ? सॉरी, म्यूचुअल फंड है स्कीम दैट इज लिंक टू सेंसेक्स, राइट? म्यूचुअल फंड होते हैं ना, दिस प्लान दैट प्लान, सेंसेक्स प्लान है कोई, उसमें 30 कंपनीज इन्वेस्ट करता है वो भी, और एक ETF और सेंसेक्स का दोनों में डिफरेंस क्या है? ETF एक होता है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो ओपन एंडेड फॉर्म में रहता है, एक होता है इंडेक्स ETF जो एक्सचेंजेस पे जिसका लिस्टिंग होकर ट्रेड होता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको रियल टाइम प्राइसिंग मिलता है, वेरेस वहाँ पर आपको एंड ऑफ द डे का प्राइस मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, बराबर, आपने मान लो सुबह 26,000 का इंडेक्स में सोचा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, राइट, मगर आपको NAV मिलेगा कि इंडेक्स जहाँ पर बंद है मे बी वो 27,000 हो सकता है, मे बी वो 25,000 हो सकता है फॉर एग्जांपल। वेरेस ETF में आपको रियल टाइम प्राइसिंग मिलता है, प्लस वो दोनों में से जनरली इंडेक्स फंड जो है उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वेरेस ETF का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम रहता है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ओपन एंडेड इंडेक्स फंड एंड एन ETF। तो गोल्ड में हेज करने के लिए जो गोल्ड ETF किया तो दी प्रपोर्शन, नहीं सॉरी सर, गोल्ड इंडेक्स ये गोल्ड ETF लिया तो प्रपोर्शन ऑफ दी परसेंटेज वाइज अप्रिसिएशन जो गोल्ड में एक्चुअल में मिलेगा तो सेम परसेंटेज वाइज सर मैं वही बोल रहा हूँ कि जो गोल्ड ETF है उसका प्राइसिंग जो है वो गोल्ड जो भाव में इंडिया में लैंड होता है, जो LBMA का प्राइस है, एक्सचेंज का जो प्राइस है उसको कन्वर्ट करके LBMA का जो प्राइस होता है वो जनरली आउंस में रहता है, उसको एक्सचेंज रेट अप्लाई करके ड्यूटीज अप्लाई करके डिफरेंस कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? सॉरी अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज डिफरेंस है? किस चीज़ का डिफरेंस है? ये गोल्ड में समझो गोल्ड 3,000 वाला 5,000 हो गया तो इसमें प्रोपोर्शनेटली? सर प्रोपोर्शनेटली साल का 1% जो मैंने बताया एक्सपेंस रेशियो, साल का 1%, यानी 5 साल रहेगा तो 5%। एनी अदर डाउट रिलेटेड टू प्राइसिंग और मैकेनिज्म? तो इफ यू गो नेक्स्ट स्लाइड, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये एक ही एंटिटी ऐसा है जो सालों से मार्केट में है, राइट। अगर आप देखोगे तो 1990 से हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, केतन पारेख का स्कैम हुआ, ग्लोबली सब प्रॉब्लम्स हुए थे, राइट। ये पर्टिकुलर फेज में गवर्नमेंट का कोलिजन हुआ, कोलिजन गवर्नमेंट आई, नया गवर्नमेंट की वजह से बुलरन जो भी हुआ, ये पूरा जो मार्केट के इवेंट है उसने पहले से लेके अभी तक सिर्फ एक ही ऐसा एंटिटी है जिसने कैप्चर किया, वो है इंडेक्स। सभी एग्री करते हो चीज को?
ये पर्टिकुलर पीरियड में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मार्केट में आई और गुल हो गई, बट ये अभी भी कांस्टेंट है, राइट? तो जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को या क्लाइंट्स को डर होता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा और डूब जाएगी तो क्या होगा। बहुत सारी वेल नोन कंपनियां भी मार्केट में आई और चली गई, बट इंडेक्स अभी भी है। तो आइडियली अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए या आपके बिल में आपको जो पास ऑन करना है उसके लिए जो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ETF के द्वारा इंडेक्स में कर सकते हो। सर गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सर पूछ रहे थे कि कौन सा ETF ने कितना रिटर्न दिया है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, किसी भी ETF का रिटर्न इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ETF ने अगर किसी ने 1979 में 1000 रुपीज अगर इन्वेस्ट किया होता और अभी तक अगर वो इन्वेस्टमेंट संभाल के रखा होता तो अभी उसका वैल्यू 16% CAGR के हिसाब से 1000 रुपये का वैल्यू क्लोज टू 2,10,000 रुपया होता है। आपको और कहाँ पर ऐसा लॉन्ग टर्म रिटर्न मिला है किसी को भी? गर्मी में भी सर 16% CAGR नहीं मिला। आप कैलकुलेट कर दीजिएगा लोन कौन पकड़े। हाँ ठीक है। और एक चीज सर कि कितने लोगों को पता था कि रियल एस्टेट चलेगा और कितने लोगों ने वो समझ के इसमें इन्वेस्ट किया। सी दैट इज अगेन टेकिंग अ कॉल, राइट? देयर इज दिस इज सेंसेक्स इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। अगर समझो अब मे बी ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल सेंसेक्स का कोई स्टॉक है, उसका मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हुआ तो धीरे धीरे वो स्टॉक इंडेक्स में से निकल जाएगा, बट इंडेक्स वहां का वहीं रहेगा। सर मैं वो नहीं बता सकता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वो मुझे पता होता तो मैं इधर प्रेजेंटेशन थोड़ी देता। मैं ये बता रहा हूँ सर कि ये लॉन्ग टर्म में जो 79 से अभी तक का हिस्ट्री जो है उसमें सेंसेक्स ने 16% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया। सॉरी सर आपको मैंने एक चार्ट दिया है उसमें, ये इसमें जिसमें सेंसेक्स का सर 25 साल का रिटर्न है उसमें, 1 साल से लेकर 25 साल। अगर आप ये आपको सभी को ये चार्ट दिया है जिसमें सेंसेक्स का 25 साल का रिटर्न, राइट? जहां पर भी आपको ग्रीन दिख रहा है, जहां पर भी ग्रीन दिख रहा है दैट इज पॉजिटिव रिटर्न, और जहां पर लाल दिख रहा है दैट इज नेगेटिव रिटर्न। अभी आप ही अनुमान लगा लीजिए कि इसमें लाल कितना है और ग्रीन कितना है। बहुत ही ज्यादा, बराबर। अभी ये चार्ट के लिए मैं और एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम सब्जेक्टिविटी का बात कर रहे थे, बराबर। आप में से समझो आप ब्रोकर हो, मैं आपका क्लाइंट हूँ, राइट? और मुझे आपको 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करवाना है, तो आप कौन सा स्टॉक रेकमेंड करोगे? सर फिर भी अंदाजा लगा, मैं आपके पास एज ए इन्वेस्टर आया हूँ, मैं आपको बोलता हूँ सर मेरे को लाख रुपया मार्केट में लगाने का है, मेरे को 3 स्टॉक बताइए, आप कौन सा बताओगे सर? सॉरी, लीवर, ITC और TCS। आप मैम? सर आप? मैम आप? जोर से बोलिए मैडम, सबको समझना है। ओके, और कोई? अभी मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने सभी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लिया, क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे? कंफ्यूज हो जाऊंगा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, बराबर। एक जन बोल रहा है लीवर लेने का है, एक जन बोलता है कि LNT लेने का है, एक जन बोलता है ITC लेने का है। एज ए इन्वेस्टर मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाहर जाऊँगा, नेक्स्ट जो भी सबसे पहला बैंक दिखेगा वहाँ पर जाऊँगा और उसको बोलूँगा FD खोलना। जनरली ये होता है, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी रिस्क है। एज अ क्लाइंट मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे क्या करना है, और उसका जो रिपरकशंस है वो ब्रोकिंग का रेवेन्यू पे होता है।
इसके लिए अगर क्लाइंट को आप ETF में इन्वेस्ट करवाते हो तो आपका आंसरेबिलिटी कम हो गया, राइट। एटलीस्ट आपको उसको कंपनी स्पेसिफिक कुछ भी इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है, राइट। प्लस उसका जैसे हमने ये लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री बताया, और सर को मैं आप सभी को जो मैंने चार्ट दिखाया है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आएंगी और चली जाएंगी, बट सेंसेक्स है या जो भी इंडेक्स है वो शाश्वत है, वो तो रहेगा ही। तो एटलीस्ट आपको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न विच इज अराउंड क्लोज टू, ग्लोबली ये एक्सेप्ट किया गया है कि मार्केट का लॉन्ग टर्म का रिटर्न इज क्लोज टू 15 to 16% CAGR, राइट। उतना आपको कोई भी FD दे सकता है, नो डाउट। FD में वॉलेटिलिटी कम होता है, इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, बट वही वॉलेटिलिटी जो है वो एक्चुअली क्लाइंट के फेवर में काम करता है, जो हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और उसकी वजह से वो तो वो सेंसेक्स लेने जैसे ही हो गया ना सर। मैं वही बोल रहा हूँ सर कि इंडिविजुअली वो एक 30 कंपनी लेने का, उससे अच्छा आप सेंसेक्स ले लीजिए, आपके लिए ट्रैकिंग आसान हो गया एज अ ब्रोकर, राइट। मैंने बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियोज देखे जिसमें 50 स्टॉक रहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे 100 शेयर भी रहते हैं, बराबर। इंडिविजुअल क्लाइंट के पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। ब्रोकर के पास आता है, वो 5 साल के बाद वो ये भी पूछ जाता है कि मेरा पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक है। वो एक बड़ा फैमिली जैसा होता है, वो बहुत सारे उसमें बच्चे रहते हैं, शाम को कोई बच्चा घर पे आया नहीं आता, वो पता नहीं चलता, वैसे वो स्टॉक का रहता है। 50 स्टॉक 60 स्टॉक लेके आते हैं, जिसका बहुत सारा जिसमें डिलिस्ट हो गया रहता है। वैसे जो क्लाइंट है उसको भी आप ETF रेकमेंड कर सकते हो बाय वे ऑफ उनका जो भी, नो डाउट खुद ने अगर स्टॉक किया रहता है तो एक तो सबसे पहले उससे प्यार हो जाता है, भले भाव कम हो, राइट। सर अगेन यू आर आस्किंग मी सेम क्वेश्चन। हाँ, आई एम नॉट सेइंग सर एनीथिंग इज बेटर और एनीथिंग इज हियर। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर कंपैरेटिवली मुझे पता होता कि क्या अच्छा है तो मैं इधर प्रेजेंटेशन थोड़ी देता सर। एज ए एडवाइजर माय एडवाइस इज एग्जैक्टली सर, माय एडवाइस इज टू पुट इन सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली सर, अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट एडवाइस इज टू पुट योर मनी इन नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, वही मैं बोल रहा हूँ सर कि सर एग्जैक्टली सर, मैं आपका पॉइंट वैलिड करता हूँ। अकॉर्डिंग टू अस इट इज एनी इंडेक्स फंड, एनी इंडेक्स ETF। तो आपने बताया कि आप डिविडेंड इश्यू करते हैं, तो जितना भी डिविडेंड पोर्शन आता है दैट टोटल अमाउंट को ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट, और सर मैं 2 मिनट में वो आंसर एक ही स्लाइड बाकी है, वो दिखा के मैं आपका आंसर देता हूँ। इफ यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड, अगर मान लो सेंसेक्स में किसी ने SIP किया होता, अगर ये प्रोडक्ट 21 साल पहले अवेलेबल होता और किसी ने सेंसेक्स में अगर इन्वेस्ट किया होता, राइट, तो यहाँ पर हमने ये चीज बताने की कोशिश की है कि समझो अगर कोई 5 साल का SIP करता है, हर महीने 100 रुपया इंडेक्स में सेंसेक्स में डालता है, तो वो 5 साल के हिसाब से 6000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया, उसका अगर हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 18,000 रुपीज, और मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट उसको 5,000 रुपया तो मिलेगा, राइट। ये चार्ट स्पेसिफिकली इसलिए दिखा गया है कि जैसे जैसे आपका SIP का टेन्योर बढ़ता जाता है, भले मार्केट खराब हो या अच्छा हो, बट अगर आप आपका SIP कंटिन्यू करते हो, लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो 15 ईयर का कॉलम है, जिसमें अगर आप मैक्सिमम गेन लोगे हो तो इट इज 19%, बट अगर मिनिमम गेन देखोगे तो इट इज 8%, विच इज अगेन मोर देन FD रेट। दिस इज टैक्स फ्री, whereas FD is tax। सर ये 15 साल में 15 साल का हम लोग ने रिटर्न लिया, राइट, और हर महीने उसको रोल ओवर किया, राइट। तो अगर उसमें जितना भी पॉसिबिलिटी आया, उसका जो मैक्सिमम रिटर्न था दैट इज अराउंड 18% CAGR। मैं बोल रहा हूँ कि वो भी कंसीडर मत कीजिए, आप मिनिमम वाला देखिए, विच इज 8%,
एटलीस्ट एफडी से तो ज़्यादा ही है पोस्ट टैक्स, राइट। दिस इज जस्ट लाइक अ स्टॉक मार्केट का एफडी जो आप आपके क्लाइंट को बता सकते हो, राइट। With this I end my presentation and we can take up the question. Yes sir, you were asking. Like you said, to distribute the dividend. So it is a policy कि कितना dividend आएगा वो distribute करेंगे? नहीं सर, it is not policy, but why we do it? For example, समझो जैसे जैसे वो जो सेंसेक्स का या किसी भी ETF का इंडेक्स का जो NAV है उससे 100 होना चाहिए, वो जितना ज़्यादा डेविएट होता जाता है उसमें ट्रैकिंग में इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होता है, तो वो वापस वो भाव पे लाने के लिए हम लोग एज अ डिविडेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So I want to know that every year dividend will be issued No, no. higher or less? नहीं, ऐसा हो सकता है कि 3 साल ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि 3 साल के बाद 1 साल आए। सबका सर कोड वगैरह स्कीम वगैरह नो नो नो, यू जस्ट नीड टू कॉल योर ब्रोकर और जस्ट लॉग ऑन टू योर टर्मिनल। जैसे एग्जैक्टली लाइक आप जैसे शेयर्स बाय करते हो इन्फोसिस या रिलायंस, बराबर। रिलायंस बाय करने के लिए आप मुकेश अंबानी को फ़ोन नहीं करते, राइट, आपके ब्रोकर को फ़ोन करते। सेम वे एग्जैक्टली जैसे आप वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो आपको ETF में भी सब कुछ सेम है सर, एग्जैक्टली स्टॉक के जैसा। उसका सेटलमेंट भी वैसे ही होता है। सॉरी सो फॉर एग्जांपल आपको अगर समझो इन्फोसिस बाय करना है तो आप टर्मिनल पे इन्फी लिखते हो, राइट। वैसे अगर सेंसेक्स ETF बाय करना है जो भी है, तो अगर आपको सेंसेक्स ETF बाय करना है तो आपको सिर्फ आई सेंसेक्स डालना है या तो 555 टाइम डालना है, तो वो स्क्रिप्ट आ जाएगा। और जैसे आप नॉर्मल बाय सेल करते हो वैसे बाय सेल करना है। सेटलमेंट जो होगा वो भी सेम होगा। नहीं, सभी के अलग अलग रहते हैं क्योंकि सभी का एक्सपेंस रेशियो अलग होता है, सभी का ट्रैकिंग एरर अलग होता है, सभी का प्राइसिंग अलग होता है। बहुत सारे ETF ऐसे जो 1/10 पे होते हैं, बहुत सारे ऐसे ETF जो 100 पे हैं। You mean to say that especially new customers who do not involve so far in stock market, who wants to come let's say बहुत कम में आया। Okay, sir, if I may ask, how many of you are actual broker and not the investors? Broker, no, all of you are broker, right? हम एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ सर। अभी रिसेंटली एज अ ब्रोकर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गए? एज अ ब्रोकर मार्केट ने जो रिटर्न दिया है वो छोड़ के आपका जो डे टू डे ऑपरेशंस है या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट आर द चैलेंजेस यू गाइस आर? सबसे पहला क्लाइंट नहीं आ रहे, राइट। रिजर्वर में पानी कम हो गया है, बारिश नहीं है, बराबर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइंट नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा रिजर्वर में पानी नहीं है, ऊपर से बारिश भी नहीं हो रहा, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम डे बाय डे खर्चा बढ़ते जा रहा है। थर्ड प्रॉब्लम कंप्लायंस के लिए तो सर मैं कुछ नहीं कर सकता। या द बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एक तो क्लाइंट नहीं आ रहे नए, पुराने क्लाइंट है वो मे बी माल बेच के जा रहे हैं मगर वापस खरीद नहीं रहे, राइट। थर्ड प्रॉब्लम ये दोनों की वजह से ओवरऑल रेवेन्यू नहीं हो रहा है। रेवेन्यू नहीं होगा तो खर्चा किधर से निकलेगा, राइट। तो इफ यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड, challenges to broking business, client acquisition, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव क्लाइंट जो गवर्नमेंट अकाउंट है, आपके जो डीलर और RM रहेंगे, राइट, ब्रांचेस में या अगर कोई सब ब्रोकर है तो उनके खुद के उनका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी देखेंगे। और इस सभी की वजह से रेवेन्यू नहीं हो रहा है, राइट। तो इफ यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड, आप जो एकदम प्योर नए क्लाइंट है उसको गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करवा के एटलीस्ट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, राइट। गोल्ड सब लोग अभी इनफैक्ट दिवाली दशहरा आ रहा है, सभी लोग गोल्ड के पीछे भागेंगे, एटलीस्ट आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा गोल्ड ETF पे, राइट। आगे उसको कैसे एक्टिवेट करना है वो भी देखते हैं, राइट।
एक्टिवेशन ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट खुल गया, राइट, बट उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है। बहुत सारे क्लाइंट अभी भी इक्विटी मार्केट में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि पिछला 5 साल 6 साल का लॉसेस देखा हुआ है, राइट। वैसे जो क्लाइंट है एटलीस्ट जो कम वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, नॉर्मल इंडिविजुअल स्टॉक्स से जो कम वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, एटलीस्ट उससे आप उनका शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा एंड ही विल ट्रेड मोर विथ यू, राइट। सेकेंड पॉइंट, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो। जैसे मैंने कहा बहुत सारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक रहते हैं, 60 स्टॉक रहते हैं, उनको खुद को भी पता नहीं होता कि कितना डिलिस्ट हो गया और किसका प्राइस क्या चल रहा है। वैसे स्टॉक का आप मे बी रिकंस्ट्रक्टिंग के लिए उसका ETF में यूज कर सकते हो। वो पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है वो निकाल के एटलीस्ट कम वॉलेटाइल, जहाँ पर क्लाइंट का हाथ चलने का कम संभावना है, वहां पर आप उसको इन्वेस्ट करवा सकते हो। आगे चल के बिकॉज ऑफ मार्केट रिटर्न, प्योर मार्केट रिटर्न, क्लाइंट को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा तो वो आपके साथ ज्यादा एसेट पार्क कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि जिनके पास अच्छा खासा बड़ा पोर्टफोलियो होता है, बट वो ब्रोकर को उसमें से सिर्फ 10% या 20% ही देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस 100 रुपया होगा, बट क्योंकि मेरा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं आपको सिर्फ 10 रुपये दूंगा। अगर उसको आप प्रॉपरली इनिशियली लो वॉलेटाइल प्रोडक्ट में अगर इन्वेस्ट करवा के उसको कॉन्फिडेंस देते हो तो हो सकता है आगे चल के वो अपना 100 रुपये का पूरा पोर्टफोलियो आपके पास ट्रांसफर करे। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि आप आपका ब्रोकरेज के लिए 1 रुपया 10 टाइम चर्न करो या 10 रुपया 1 टाइम चर्न करो, बराबर, आपका ब्रोकरेज सेम रहेगा, बट वो एटलीस्ट क्लाइंट आपके साथ टिका रहेगा और जो रेवेन्यू का प्रॉब्लम हो रहा है वो कम होगा। लास्ट पॉइंट, जैसे अपन ने SIP का डिस्कस किया, क्लाइंट को सिर्फ एक टाइम SIP के लिए कन्विंस करना है कि ETF में या इंडेक्स ETF में क्यों SIP करना चाहिए। अगर वो क्लाइंट कन्विंस हो जाता है तो एटलीस्ट नेक्स्ट महीने से अगले 12 महीने तक या 60 महीने तक आपका एटलीस्ट वो ब्रोकरेज फिक्स हो गया, वो सेट कर दिया। और यहाँ पर वही दिखाया है नीचे और फॉर एग्जाम्पल समझो आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो महीने का 5000 का SIP कर रहा है किसी भी इंडेक्स ETF, राइट। और समझो आप नॉर्मली अगर 50 पैसा ब्रोकरेज चार्ज करते हो तो उस हिसाब से आपका वो क्लाइंट के लिए 50 रुपया ब्रोकरेज हुआ। आप धीरे धीरे अगर वो वैसे क्लाइंट अगर डेवलप करना चालू करते हो, आगे चल के समझो आपका 500 पैसा क्लाइंट होता है जो विदाउट कोई ब्रेन अप्लाइंग या विदाउट कोई उनके साथ उनको रिपोर्ट भेजना है, उनके साथ डिस्कशन बिना किए हो सकता है, तो आपका एटलीस्ट महीने का 25 से 30 हजार का ब्रोकरेज जो है वो नक्की हो जाता है आपकी तरफ से, बराबर, जिसमें एटलीस्ट आप आपका शॉप का नॉर्मल रनिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट। सेकेंड बिगेस्ट पॉइंट, अगर आप किसी भी क्लाइंट को समझो एक पर्टिकुलर RM है, वो RM को जनरली 15 से 20 क्लाइंट एलोकेट होते हैं, राइट, जनरली। अभी वो 10 समझो, मान लो एक RM को 10 क्लाइंट असाइन किए हुए हैं, वो 10 क्लाइंट दिन में वो समझो वो सभी के पास 10 स्टॉक है और दिन में हर स्टॉक पे एक क्वेश्चन वो RM को पूछते हैं। शाम को वो RM को पूरा दिन में उसने अप्रोक्सीमेटली कितना आंसर दिया, 100 स्क्रिप्ट रिलेटेड आंसर दिया, राइट। वो जब भी 3:30 को बाजार बंद होगा उसको गोली लेना पड़ेगा ब्लड प्रेशर, वो आंसर देते हैं, राइट। उसके सिवा आप क्या कर सकते हो कि अगर किसी भी क्लाइंट ने समझो इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है तो क्लाइंट को सिर्फ आपको भाव बताना है कि इसका प्राइसिंग 100 है, ये ऐसे ट्रेड होता है, आप आपका व्यू पॉइंट के हिसाब से ट्रेड कर लो, या हमारा जो RM है वो आपको ट्रेड करके देगा। उसकी वजह से क्या होगा, RM का जो प्रोडक्टिविटी है, जो आंसरेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से उसका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा, वो 3:30 के बाद बाहर जाके नए क्लाइंट भी लेके आ सकते हैं, जो अभी का केस में अगर इतना सारा पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो नहीं कर सकते। तो आप धीरे धीरे वो एडवाइजरी बेस्ड अप्रोच भी आपका ओवरऑल रेवेन्यू जनरेशन के लिए कर सकते हो। तो विद दिस आई एंड माय प्रेजेंटेशन एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू टू be patient and hear our presentation and had a very interactive session. So if at all anyone has any question, please you can raise it.
ये सबको सब समझ में आ गया, यानी कल से एटलीस्ट ETF में खुद का सौदा करना चालू कर दो। थैंक यू वेरी मच। लैपटॉप सब ऊपर ले मेरा वाला लैपटॉप